We'll have an open talk for 5 minutes. You can unmute your mic and we can talk. No issue. Hello, sir. Hello, hello. Actually, I am from Karnataka, Belgaum. Okay, Karnataka. But Belgaum. this session might be in Hindi, like 80% will be Hindi. It is okay for you? Yeah, yeah, not an issue. Okay, great, great. So have you tried hydroponics or wanted to learn? No, I just wanted to learn. So now I am going to execute it. Definitely. Have you attended a previous webinar? Like No, no, no. first? No, this is the first what I am attending. Okay, okay, okay. You can check out the previous attended webinar on YouTube. Like we have Yeah, taken some. sure, sure, sir. I will check it out. Yeah. Therein we have discussed initial setup. Like if you are a beginner and you wanted to set up your small 10 to 15 planter setup, then how you could approach for that. We have discussed that phase one setup. Okay, Yeah. sure, sure. I will check that. Even the link is also described, no? I will check that. Yeah, definitely, definitely. Anyone who have joined practicing hydroponic, like as a hobbyist purpose or commercially? Pratnya from Pune, haven't tried hydroponic, wanted to learn, keeping on mute. Lot of noise around. Okay, no issue, Pratnya. Yes, Bala sir. Yes, sir. Commercial. We'll wait for just 2 minutes, then we'll start our session. And habit. Sir. Your voice was not clear, sir. Hello, I'm from Pune. Balaji Ekbote is from Pune. Good one. Manish, new for hydroponic, wanted to learn, basically from Uttar Pradesh, currently in Tamil Nadu. Okay, okay. See, what I often say to everyone is learning hydroponics theoretically won't work much. So the best approach would be design your small hydroponic system. It could be 10 planter, 5 planter, 30 planter, depend upon what scale you have to approach, and start practicing it, because this is a kind of field like 80% of people is not does not belong to horticulture background, like they don't have in-depth knowledge of agriculture. Many people are from engineering, some other commerce background, and etc. So for them, it is the best approach that you design a small planter, 8 planter, 10 planter, and start practicing it. Because hydroponic take time. If you are not in the field of agriculture, then it will definitely take time, around 1 year, 2 year, knowing in depth about how plant actually work, how much nutrient we need to provide to the plant, and how to make our plant happy, and harvest your crop as early as possible. So the best approach would be uh, design a small system and just cultivate your crop. Balaji, this is new for me and looking to start the small setup like terrace gardening. Yes, you can approach for terrace gardening as well, no issue.
Yeah, definitely. There are many people in WhatsApp group. Whatever they have their question, I am ready to answer them. Like I have, like you have got a mail to join Telegram channel as well as WhatsApp group, so you can definitely join. Whatever is your question, real time answer will be provided to you. Please tell about grow bag hydroponic also for home kitchen purpose. Grow bag are easily available in the market. There is no rocket science in it. You can buy it from your nursery or any agriculture shop. Grow bag are available. Just you have to make a better growing mix, like soilless media, which is soilless media you have to make. If you have that good soilless media, definitely your plant will grow efficiently. Yeah, definitely. I'll be sharing Telegram and WhatsApp group link as well. Okay, it's already 7:07. So we will start. Everyone is ready. Just type yes and we'll start it. Sure. Okay, everyone is able to see the screen. Yes. Voice is clear. Yes. Okay, great. Okay, so this is our third webinar, which will be taking about growing medium and Cocopeat buffering. I have written, but buffering we'll be discussing, and mainly we'll be discussing about like a few of our member have a question about how to what is organic and how to get certified. So I have added that slide here. So the today's session is on complete guide to hydroponic growing media. Just confirm once voice is audible so that I can start Yes. the session. Everyone? Yes. 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 Okay, great. Thank you for replying. So see, what is written here, सिर्फ सॉइल को हाइड्रोपोनिक सिस्टम से रिमूव कर देने से हमें ये पता नहीं चलता कि जो सपोर्ट है, बिकॉज what is essential is if you are using your plant inside your net pot, then it should have sufficient amount of support, like उसे support रहना चाहिए, the plant should sustain that support. So just removing soil is not a solution. The solution is the plant should withstand and support itself so efficiently. और जो ग्रोइंग मीडियम होना चाहिए वो ग्रोइंग मीडियम शुड हैव good water absorption capacity, oxygen ratio should be maintained. So that's why we use the growing media. और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही होती है कि हमें सबसे मतलब देर आर n number of growing media available. We'll be discussing it one by one, but the main issue is which growing media we need to select for which crop and for which system. Like हम NFT सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, हम DWC सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, हम वर्टिकल सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, हम बेड सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, उसके रिलेटेड में हमें कौन सा ग्रोइंग मीडिया यूज़ करना चाहिए. दैट इज़ द मेन चैलेंज फॉर कमर्शियल ग्रोअर. फॉर होम ग्रोअर इट इज़ नॉट सो लाइक हेक्टिक जॉब. दे कैन जो भी उनके पास में अवेलेबिलिटी है, लाइक वॉट एवर ग्रोइंग मीडिया इज अवेलेबल at their nearest store, they can use it in their system. The main thing is it should be compatible with your hydroponic crop for commercial purposes. So the first growing media which we'll be discussing is vermiculite.
काफ़ी सारों ने वर्मिकुलाइट नाम सुना होगा. इट इज़ वेरी मच इजीली अवेलेबल इन मार्केट. और ये हम लोग ज़्यादातर सॉइल 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 कल्चर में भी हम लोग वर्मिकुलाइट का यूज़ करते हैं. लाइक व्हेनेवर किसी को भी अगर ग्रोइंग मीडिया बनाना है, सॉइललेस सॉइल में भी अगर ग्रोइंग मीडिया बनाना है, तो वी कैन यूज़ वर्मिकुलाइट, वर्मी कंपोस्ट, cow dung and all. So it can be used in hydroponic as well. Why it is used? Because it is sterilized, it is lightweight, and it is kind of a sponge like arrangement. And it or us that vermiculite has a soaking up ability as well as water retention capability. But sometimes vermiculite become more denser. Why? Because it has a very good water retention capacity. That's why vermiculite हम हाइड्रोपोनिक में डायरेक्टली हम लोग यूज़ नहीं करते हैं. लाइक कोकोपीट आप लोग ने नाम सुना होगा, या फिर रॉकवूल सुना होगा. तो ये सारी चीज़ें हम लोग कैसे सिंगल यूज़ के लिए यूज़ कर लेते हैं. मतलब उसके साथ में किसी का कंजंक्शन नहीं करते. कंजंक्शन मतलब उसके साथ में रिप्लेसमेंट के तौर पे किसी सेकेंड चीज़ को हम लोग यूज़ नहीं करते. बट वर्मिकुलाइट के लिए हम लोग वर्मिकुलाइट को हम एज अ सेकेंड कंजंक्शन यूज़ करते हैं, बिकॉज वर्मिकुलाइट हैज़ मोर एरेशन कैपेबिलिटी. सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ वर्मिकुलाइट? एज आई हैव डिस्कस कि वो लाइट वेट होता है, फैंटास्टिक वाटर रेजिस्टेंस होता है. बट सारे चीज़ों का डाउन साइड हमें पता करना है, बिकॉज इफ वी आर यूजिंग इट इन आर होम ग्रो और हाइड्रोपोनिक सिस्टम, if you can use it there are many downside as well. Downside of vermiculite, these are vermiculite has a tendency to absorb much water. लाइक कई बार कैसे होता है कि हम लोग वर्मिकुलाइट को एज अ सीडलिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं. लाइक इफ़ यू आर एन होम ग्रोअर, हाइड्रोपोनिक ग्रोअर, तो हम लोग वर्मिकुलाइट ले लेंगे और उसी में हम लोग सीड्स को जर्मिनेट करना शुरू कर देंगे. तो सीड जर्मिनेशन, व्हेन देर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सीड जर्मिनेशन. तो इनिशियली जब आप उसको वर्मिकुलाइट में सीड्स को इंसर्ट करके वाटर स्प्रे कर दोगे उसमें, तो देर इज़ अ डाउनसाइड ऑफ वर्मिकुलाइट कि वो बहुत ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है. और बहुत ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करने के कारण क्या होता है कि सीड को बहुत ज़्यादा मॉइस्चर मिल जाता है. उसके कारण सीड फंगस अटैक हो जाते हैं और माइट बी सीड जर्मिनेट ना हो. Like if you are getting 70% 80% of seed germination using vermiculite, it might happen that seed germination ज़्यादा ना मिले. तो हम दोष देंगे कि हमारा सीड खराब है. बट देर इज़ अनदर रीज़न कि वर्मिकुलाइट का बहुत ज़्यादा वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है, इसके कारण सीड जर्मिनेट नहीं होता है. स्लाइटली एक्सपेंसिव है. देन द मेन डाउनसाइड ऑफ वर्मिकुलाइट इज़ वो बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाता है. लाइक यू एवरीवन नो व्हाट इज़ डिकम्पोज. तो प्रॉब्लम इसमें यही आती है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लॉस कर लेता है और बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाता है. तो बहुत जल्दी डिकम्पोज होता है तो डेफिनेटली हम इसे लॉन्ग साइकिल के लिए, लाइक कैबेज हो गया या फिर ब्रोकली हो गया, ये सारी चीज़ों को मिनिमम 2 महीना 2.5 महीना लगते हैं. 2 महीने 2.5 महीने लगते हैं इसको कम्प्लीटली हार्वेस्ट होने के लिए, कल्टीवेट होने के लिए और कम्प्लीटली रेडी टू हार्वेस्ट होने के लिए. अगर वहीं पे हमारा वर्मिकुलाइट जो है वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा, तो हमने अगर कुछ हाइट पे हमने वर्मिकुलाइट रखा है और वो हाइट डिकम्पोज होके कम हो गया है, तो डेफिनेटली आपके प्लांट को सपोर्ट नहीं मिल पाएगा जो इफेक्टिवनेस से उसे सपोर्ट मिलना चाहिए. तो इट इज़ डेफिनेटली यूज फॉर शॉर्ट टर्म क्रॉप्स लाइक okra, lettuce, spinach and cucumber. Okay, the second most thing, the second growing media which we use is perlite. Perlite, we everyone know about perlite. सॉइल में भी इसे कई दफ़ा यूज़ करते हैं. तो इट इज़ चीपली अवेलेबल. हाउ परलाइट इज़ मेड इज़ it is superheated quartz sand or glass which has been baked until it expands. Definitely it is also sterilized and pH controlled. This sterilized word is coming a number of times, so I could explain what is sterilized. Sterilized is like
बैक्टीरिया जो होता है लाइक बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं होता है स्टरलाइजेशन प्रोसेस. इफ यू हैव स्टरलाइज्ड एनी ग्रोइंग मीडिया, it means whenever any bacteria lay egg, definitely it will not produce another bacteria. So definitely it is like bacteria attack होने से वो बचाता है. That is called as sterilize. So definitely perlite is also sterilized and pH neutral, because in hydroponic we often we know that pH level we have to maintain it between 5.5 to 6.5. This is the ideal pH level which we have to maintain. If it is not pH neutral, if it is not pH neutral, then it will be like आज शाम को हमने उसको pH 6 पे मेंटेन करके रखा है, 1 घंटे बाद हम उसे देख रहे हैं तो वो 8 पे पहुंच गया. सिर्फ मैं इसकी बात कर रहा हूँ, आपके ग्रोइंग मीडियम की बात कर रहा हूँ. व्हेन इट इज़ नॉट डिप्ड इन न्यूट्रन सोल्यूशन. इफ इट इज़ डिप्ड इन न्यूट्रन सोल्यूशन तो वहाँ पे तो एसिडिक रिएक्शन होंगे, पेस्टिसाइड्स मतलब आप न्यूट्रिएंट यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग केमिकल यूज़ कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एनपीके, इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड ऑल. तो डेफिनेटली देर इज़ एन एसिड फॉर्मेशन, तो पीएच अप डाउन होगा. बट आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली ग्रोइंग मीडियम. ग्रोइंग मीडियम का पीएच न्यूट्रल रहता है, जितने भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं उसमें. बट जब आप न्यूट्रन सोल्यूशन में डालोगे तो पीएच न्यूट्रल नहीं रहेगा. वो डिपेंड करेगा आपके पीएच सोल्यूशन पे कि वहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है. सो एज आई हैव डिस्कस्ड कि वर्मिकुलाइट को हम एज अ सेकेंड वर्मिकुलाइट को हम लोग एज अ सेकेंड ऑप्शन यूज़ करते हैं. तो डेफिनेटली वर्मिकुलाइट के साथ में हम जो सेकेंड ऑप्शन यूज़ करेंगे वो है परलाइट. परलाइट कैन बी यूज्ड एज अ सेकेंड ऑप्शन विथ वर्मिकुलाइट. मीन्स 30% परलाइट यूज़ कर लिए, 70% वर्मिकुलाइट यूज़ कर लिए, मेक इट अ मिक्स एंड दैट इज़ योर ग्रोइंग मीडिया फॉर योर अपकमिंग क्रॉप. एक सिंपल सा थंब रूल जो मैंने अभी बताया कि थर्ड मोर देन 3 पार्ट्स हम लोग यूज़ करते हैं परलाइट का, एंड इट इज़ टू लाइट वेट. तो ये एक बहुत बड़ा डीमेरिट हो जाता है कि इफ़ इट इज़ लाइट वेट तो वो ऊपर में ऐसे फ्लोट होने लगता है. लाइक वेन एवर वी यूज़ DWC सिस्टम अगर हम यूज़ कर रहे हैं जिसमें वाटर ऑलमोस्ट नेट कप के ऊपर तक भरा हुआ रहता है, तो कई बार ऐसे हो जाता है कि जो आपका सपोर्ट है वो सपोर्ट छोड़ के वो ऊपर में फ्लोट होने लगता है बिकॉज ऑफ लाइट वेट. दैट्स वाई इट इज़ बीन उसे हम लोग सेकेंड मीडियम के साथ में यूज़ करते हैं, दैट इज़ वर्मिकुलाइट. यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो कि हाउ हाउ परलाइट लुक्स अबाउट. ये रॉक होता है, रॉक इज बीन क्रश्ड. क्रशिंग के बाद में उसको बेक करते हैं, बेक करने के बाद में उसे एक्सपांड करते हैं, एक्सपांड करने के बाद में दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट विच परलाइट वी गेट. देन व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ परलाइट? इट इज लाइट वेट, इट इज लाइट वेट, फैंटास्टिक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिटेंशन कैपेसिटी बहुत अच्छी है परलाइट की. इसलिए हम लोग कई बार इसे सॉइल मीडियम में भी परलाइट का यूज़ करते हैं, बिकॉज सॉइल में कैसा होता है, बहुत हमें वो मॉलिक्यूलर वॉइड्स रहते नहीं है सॉइल में, तो हम लोग कई बार परलाइट को उसमें यूज़ कर लेते हैं ताकि एरेशन हमें अच्छे से मिले. डेफिनेटली दैट सॉइललेस मीडियम में भी हम लोग परलाइट को यूज़ करते हैं. देन डाउनसाइड ऑफ परलाइट इज पुअर वाटर रिटेंशन. एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है उसका बिकॉज इट इज़ मेड, as I've told, it is made from rock which is crushed and then it is expanded. There is a chemical environmental impact है थोड़ा सा. Then third one is rockwool. रॉकवूल के बारे में डेफिनेटली जो भी हाइड्रोपोनिक्स के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं दे माइट नो अबाउट व्हाट इज रॉकवूल. रॉकवूल इज द फर्स्ट चॉइस फॉर हाइड्रोपोनिक ग्रोअर to adopt. Like even you are practicing commercially or as a home grower, rockwool फर्स्ट चॉइस होती है हमारी. तो हाउ रॉकवूल इज मेड? इट इज सुपर हीटेड बेसॉल्ट विच इज बीन स्पिन्ड. लाइक उसे घुमा घुमा के हम लोग एक ऐसे वेब टाइप स्ट्रक्चर में उसे घुमा के हम एक ब्लॉक बना लेते हैं. द ग्रोइंग मीडिया इज डेफिनेटली, इट इज ऑल्सो स्टरलाइज. होल्ड अ सेकेंड. Someone want to join but he is not getting the link. Okay. So
This is also having a best water retention capacity. pH is also neutral and it is hostile to pest. Like बोनस है ये कि वो पेस्ट जितने भी है उसे दूर रखता है प्लांट से. Best Rockwool is best suited for drip system as well as even flow system. Then benefits of Rockwool are water retention capacity बहुत अच्छी है. जितने भी होम ग्रोअर्स है या फिर कमर्शियल ग्रोअर्स है, दे अडॉप्ट रॉकवुल एज एन इन देयर इनिशियल स्टेजेस. लाइक वेन एवर दे गो फॉर सीडलिंग, तभी उन लोग रॉकवुल का यूज़ कर लेते हैं, बिकॉज वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत ही अच्छी है रॉकवुल की. कई दफ़ा आप लोग ने इमेजेस में देखा होगा, लाइक गूगल इमेज में या कहीं पे भी, तो वो इस तरह के आपको एक ब्लॉक दिखते होंगे और उसी में उन लोग सीडलिंग को इस तरह से आपको दिखाते होंगे. दिस इज़ बेसिकली रॉकवुल एंड इट इज़ बेस्ट सुटेड फॉर सीडलिंग बिकॉज वाटर और आपका ह्यूमिडिटी, ये दोनों चीज़ को वो बैलेंस करके चलता है रॉकवुल. एंड ईजिली डिस्पोजेबल, तो डिग्रेडेबल भी है, इजीली आप डिस्पोज कर सकते हैं. देन इट रिक्वायर्स पीएच बैलेंस. लाइक रॉकवुल इज मेड अप ऑफ सुपर हीटेड बेसॉल्ट. तो यहाँ पे सुपर हीटेड बेसॉल्ट में पीएच, जब आप उसको कमर्शियली हाइड्रोपोनिक्स में यूज़ करेंगे तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है उसमें कि वो पीएच अनबैलेंस करता है थोड़ा सा. इट इज़ नॉट अ मेजर इशू, माइनर सा इशू है, इट कैन बी इजीली रेक्टिफाइड. So this is the image of Rockwool which is used. Then another term आप लोग एक और growing medium यूज सुनते होंगे कि that is Oasis Cube. So Oasis Cube is definitely similar to Rockwool. In fact, they are very great hydroponic growing media for germination of seeds. Oasis is a company which is from abroad. It is not from India. So Oasis is a company which has made that particular cube which is similar to Rockwool, but as they have made that Oasis, they have made that cube, तो इसलिए उन लोग ने अपना कंपनी का नाम Oasis Cube ही दे दिया है. And definitely it is very much popular. Oasis Cube, like Xerox machine और प्रिंट आउट वाला जो फंडा है ना, सेम इट इज एप्लीकेबल हियर एज वेल. Oasis Cube, it is not a product name, but Oasis is a company. They manufacture that cube which is similar to Rockwool. So Oasis Cube is made up of foam which is completely inert, and it is also having pH neutral, fantastic water retention capacity. Similar to Rockwool, it does not come up with nutrient solution. Like हम रॉक, आप लोग के मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि मैं बार बार एम्फेसिस कर रहा हूँ कि कमर्शियली रॉकवुल एंड ओएसिस क्यूब क्यों यूज करते हैं. तो द रीजन बिहाइंड इट इज रॉकवुल एंड ओएसिस क्यूब डजंट कम विथ एनी एडेड न्यूट्रिएंट इन इट. लाइक कई बार आप लोग ने सुना होगा कोकोपीट जो रहता है, कोकोपीट को बफरिंग करने की ज़रूरत पड़ती है. लाइक वो साउथ साइड से कहीं से भी डिकम्पोज होके आता है, तो डेफिनेटली इट हैज़ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन इट. तो सॉल्ट है तो डेफिनेटली देयर इज सम केमिकल एडेड इन इट. तो यहाँ पे ओएसिस क्यूब और रॉकवुल में कोई भी जितने भी प्राइमरी और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट होते हैं वो कुछ भी नहीं रहता है. इट इज़ कम्प्लीटली a fresh cube which can be used for seedling purpose as well as growing. How to buffer the coco pit, please guide. Yeah, I'll be explaining it in a while. और एक चीज़ रहता है कि ओएसिस क्यूब में पहले से एक ऊपर में छोटा सा होल किया हुआ रहता है, लाइक फॉर इंसर्टिंग योर सीड इनसाइड इट. मैं दिखाता हूँ आपको इमेज में. ये देखिए, यहाँ पे आप इमेज में देख पाएंगे, ये आपको होल दिख रहा है. these are cubes, like one cube, this is second cube, this is third cube. यहाँ पे आप सीडलिंग्स डाल देते हैं तो प्री कट होल होते हैं उसमें, और आफ्टर 7 days और 10 days आपको यहाँ से सीडलिंग्स मिल जाते हैं इजीली. सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ओएसिस क्यूब? डेफिनेटली inexpensive है as compared to other. Like it is not so inexpensive.
थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है वो, बट फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस और उसकी एडवांटेजेस को देखते हुए इकोनॉमिकल हो जाता है. इट इज़ नॉट, आई शुड राइट हियर इकोनॉमिकल. इट इज़ क्वाइट थोड़ा सा एक्सपेंसिव है. नो नीड टू एडजस्ट पीएच, इजी टू यूज. एंड सेकेंड डाउन साइड इज इट इज़ नॉट ऑर्गेनिक. डेफिनेटली उसे बनाया जाता है, मतलब आपको जैसे मैंने बताया कि बेसॉल्ट को वेब्स में लेते हैं और वेब से उसे कंप्लीट एक क्यूब बनाते हैं. तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पंज लाइक अरेंजमेंट आपको दिखेगा, which has a very good water retention capacity, and aeration is also very good. I would request Bala sir to mute your mic. Bala sir, please mute your mic. Then next one is expanded clay palette hydrotone. These are like small clay pallets, small stone like structure, which is fired to create a porous material. Okay, so we were discussing about hydrotone. This is expandable clay palette which are fired to create a porous material that work extremely well. With a good water retention capacity, and even it remain heavy enough. Like इसे हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं आपका जो डच बकेट सिस्टम होता है ना, जिसमें हमें बड़े प्लांट लगाने होते हैं. तो डच बकेट सिस्टम में ऐसे कोई थंब रूल नहीं है कि वी हैव टू यूज़ इट इन डच बकेट, डच बकेट, बट या वी कैन यूज़ इट इन एनएफटी एज वेल. बट ज़्यादातर लोग डच बकेट में हाइड्रोटोन यूज़ करते हैं, बिकॉज whenever we spray water over your hydrotone, it has a good water retention capacity. थोड़ा सा heavy हो जाता है और plant को support करने के लिए it is quite easy for it. Yeah, and definitely it is not cheaper. Hydrotone is not cheaper as compared to other, but yeah, इसकी एक advantage है कि ये cost effective हो जाता है. How it is cost effective? कि हम इसे reuse कर सकते हैं. Like just you need to wash it, clean it, and then you can reuse it. So जितने भी यहाँ पे मैंने जितने भी पहले डिस्कस किया है उसको आप एक बार या दो बार यूज़ कर सकते हैं. एंड इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि आप सेकेंड टाइम उसे यूज़ करें, लाइक कोकोपीट को हम लोग बोल रहे या फिर और सारी चीज़ों को कमर्शियली. बट या हाइड्रोटोन को आप उसे वॉश कर सकते हैं, ड्राई कर लीजिए, फिर से वॉश कर लीजिए, फिर ड्राई कर लीजिए और उसे फिर सेकेंड साइकिल के लिए यूज़ कर लीजिए. इट इज़ ऑल्सो नॉन डिग्रेडेबल, स्टरलाइज एंड पीएच न्यूट्रल. बट एक ही इसका डाउन साइड है कि वो जल्दी से ड्राई आउट हो जाता है. तो इसलिए आपने कई बार देखा होगा कि हम लोग टच बकेट में इसलिए यूज़ करते हैं, वहाँ पे ड्रिप सिस्टम लगा देते हैं, तो आफ्टर 1 आवर, आफ्टर हाफ एन आवर वो स्प्रिंकल कर देता है वाटर को, तो मॉइस्चर मेंटेन रहता है. तो बस एक ही है डिसएडवांटेज कि वो जल्दी से ड्राई आउट हो जाता है. बट आपने उसको अगर सही मतलब सही क्वांटिटी में अगर उसे वाटर स्प्रे न्यूट्रन स्प्रे किया है तो उसके पास में The voice is audible. वॉइस इज नॉट ऑडिबल. हेलो. It's ओके very clear. ओके थैंक यू. सो इट हैज लाइक बहुत जल्दी ड्राई आउट हो जाता है. तो मैंने जैसे पहले बताया आपको कि वो टच बकेट में ही सिर्फ यूज नहीं होता है, इट कैन डेफिनेट इफेक्टिवली वर्क Sir, I'm इन. not able to hear anything. प्लीज रीजॉइन, लाइक
cancel the meet and rejoin using the same link. Sir, can you slow it down? Your voice, can you slow it down? I can't understand. Okay, ma'am. So they can work great when it can be used in deep water culture as well as NFT. Like, what are the benefits of hydrotone or clay palette? Someone say clay palette, someone say hydrotone. So there are different names, but it is the same thing. Like, I have not shown the image here. Yes, I have missed that image. So it is definitely reusable, as I have told, affordable, pH neutral. हैवी हो जाता है, मैंने जैसे डाउन साइड बताया आपको कि हैवी हो जाता है, एंड थोड़ा सा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है। एज मतलब एनवायरमेंटल इम्पैक्ट मैं इसलिए आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि केमिकली इट इज़ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। उसके इन डिप्थ रिसर्च में जाएंगे तो डेफिनेटली यू विल फाइंड आउट कि एग्जैक्टली क्या है, बट एज सच कोई मेजर केमिकल एज सच कोई मेजर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट नहीं है। किसी किसी में हो सकता है कि वो डिग्रेड नहीं होता है, तो अगर आपने यूज़ कर लिया और इसे कहीं पे भी फेंक दिया तो वो डिग्रेडेबल नहीं है, तो अननेसेसरी वो पड़ा रहेगा और वहाँ पे पोल्यूशन क्रिएट करेंगे। दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड दैट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट वर्ड इन इट। कई बार क्या होता है कि आपने न्यूट्रिएंट यूज़ किया है, एनी ग्रोइंग मीडियम आपने यूज़ किया, उसमें न्यूट्रिएंट डाला है, वो न्यूट्रिएंट में बहुत सारे अदर केमिकल्स हैं, वो आपने लेके कहीं पे भी डिस्पोज कर दिया। एनिमल ने या फिर जो भी एनिमल है या फिर कुछ भी चीज़ है जो भी घूम रही है, उन्होंने खा लिया वो चीज़ें, डेफिनेटली वो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कर देगा। देन next what we can use is gravel. So it might not seems like a good growing media for a plant, like for to use it in hydroponic system, but yeah definitely you can use. इसका बेस्ट एग्जांपल हम ऐसे बता सकते हैं कि आप कभी भी लेक में या फिर बीचेस के पास में गए होगे तो you can notice that there are n number of gravel around it, and plant are happily growing inside it. So you can use it gravel in hydroponic system as well. Not many people are using it, but yeah, some have practiced it, but not get they haven't get that much result as compared to other growing media. या तब ग्रेवल यूज़ करने का एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज ये होता है कि वो रूट रूट लैच बना देता है। लाइक रूट लैच क्या हो जाएगा कि एक 4-5 पत्थरों का बंच है और उसमें जो रूट्स है वो रूट उसी में घूम घूम के एक अच्छा सा लैच बना लेता है। मतलब कंप्लीटली वो होल्ड कर लेता है उस ग्रेवल को या उस पत्थर को बोल सकते हैं। तो सपोर्ट सपोर्ट सिस्टम जो है, सपोर्ट प्लांट का सपोर्ट सिस्टम है, वो इफेक्टिव उसे मिल जाता है। बट अगर आप लोग टेस्ट करना चाहते हैं कि ग्रेवल में हमारा प्लांट ग्रो होता है कि नहीं, तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है कि उसे थरोली आप रिंस करिए, मतलब उसे थरोली आप वॉश कर लीजिए। बिकॉज ग्रेवल कहीं से भी हम लेके आ सकते हैं, उसमें हार्मफुल केमिकल्स हो सकते हैं या फिर बैक्टीरिया हो सकता है, फंगस हो सकता है, और आपने उसे वॉश नहीं किया अच्छे से और डायरेक्टली अपने हाइड्रोपोनिक सिस्टम में यूज़ कर लिया, तो डेफिनेटली योर प्लांट ऑल्सो गेट rid of that fungus attack and bacterial effect. So this is the image. यहाँ पे gravel है and your plant is effectively growing. यहाँ पे एक मैंने image दिखाया हुआ है which describe कि अगर आपका टैंक 25 mm हाइट पे है, exactly it is at 25 mm, तो आपको gravel हाफ अगर आप फिल करते हैं तो यहाँ पे फंगस अटैक का, एल्गी ग्रोथ का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वेयर एज आपको करना क्या चाहिए, अगर आपका 50 mm का, मान लीजिए अगर 50 mm का टैंक है, तो आपको ग्रेवल कंप्लीटली ऊपर तक भरना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने ये लेवल तक के ही न्यूट्रिएंट सोल्यूशन है, बाकी के जो पत्थर है दैट इज फ्लोटिंग इन दी एटमॉस्फेयर और इट इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, आई कुड से। So this definitely reduces your fungus attack as well as algae growth. Then next is coco coir. Coco coir is a very best option और सबसे ज़्यादा कोको coir यूज़ करते हैं
रॉकवॉल और ओएसिस क्यूब से भी ज़्यादा कोको कॉयर यूज़ होता है। कोको कॉयर इज़ नथिंग बट कोकोपीट, जो हम कोकोपीट यूज़ करते हैं। कोकोपीट होता है या फिर कोको कॉइन होता है, कोको कॉयर होता है, ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ है, कोकोनट हस्क से ही बनती है, बट एप्लीकेशन वाइज उसे डिफरेंट डिफरेंट नाम दे दिया। तो इट हैज़ अ गुड, वेरी गुड ऑप्शन फॉर प्रैक्टिसिंग इट इन होम ग्रोइंग और कमर्शियल। नेचुरली अवेलेबल है तो डेफिनेटली इट इज़ ऑर्गेनिक, नेचुरली अवेलेबल है। देन it has also it is also a pH neutral, well aeration and fantastic water retention capacity. एक मेजर इशू आता है जितना मैंने नोटिस किया हुआ है कि जो आपका कोकोपीट आप यूज़ करते हैं, तो कोकोपीट में सिर्फ जो थोड़े से मोटे पार्टिकल्स है कोकोपीट या कोकोनट हस्क के, सिर्फ वही यूज़ करिए। जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं ना, उसे आप जब वॉश करते हैं या फिर आप जब बफरिंग करते हैं, उसे वहीं पे ही आप लोग रिमूव कर दीजिए। व्हाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि आप अगर डायरेक्टली उसे आपके नेट पॉट में डालेंगे तो जब भी न्यूट्रिएंट फ्लो हो रहा है तो कई दफ़ा क्या होगा कि वो जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स है, वो स्मॉल पार्टिकल आपके एनएफटी सिस्टम में आ जाएंगे, नीचे जमा हो जाएंगे। फ्लो वेलोसिटी जैसे जैसे बढ़ेगी बढ़ेगी तो वो जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल ऑफ कोकोनट हस्क है, वो धीरे धीरे आपके टैंक में आ जाएंगे, न्यूट्रिएंट टैंक में। न्यूट्रिएंट टैंक में आने के बाद में वो पंप में चला जाएगा और पंप को चोक कर देगा। तो क्लॉगिंग की इफ़ेक्ट आती है कई दफ़ा कोको कॉयर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो द बेस्ट ऑप्शन इज़ आप पहले ही उसे रिमूव कर दीजिए, और नहीं तो जो आप नेट पॉट यूज़ कर रहे हो, नेट पॉट के बॉटम साइड पे आप लार्ज पार्टिकल ऑफ कोकोनट हस्क डालिए। उसके बाद ऊपर में आप कोकोनट जो का ये है कोकोपीट के स्मॉल पार्टिकल्स है, आप वो डाल सकते हैं। मेन इज़ कि उसे क्लॉगिंग से बचाना है, लाइक पंप हो गया या फिर जितने भी आपके इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं उसमें क्लॉगिंग से बचाना है। और जो आपका एनएफटी चैनल है, वो एनएफटी चैनल में उस चीज़ को आने से रोकना है। अगर वो आ जाएगा तो जो फंगल अटैक आपका 2 महीने 4 महीने में होने वाला है, वो फंगल अटैक 10 से 12 दिन में ही हो जाएगा। और फंगल अटैक हो गया तो फिर आपको कंप्लीट मेंटेनेंस के लिए लेके जाना पड़ता है सिस्टम को। एज आई हैव डिस्कस्ड इट, ऑर्गेनिक है, डाउनसाइड वही है कि वाटर क्लॉगिंग होता है और जनरली इट इज़ नॉट रीयूजेबल। लोग रीयूज कर लेते हैं उसे बफरिंग वगैरह करके, बट जो कमर्शियल लेवल पे अगर आप हाइड्रोपोनिक फार्मिंग कर रहे हो तो दे वोंट रीयूज इट। उसे कुछ और लाइक टेरेस फार्मिंग के लिए या फिर माइक्रो ग्रीन्स उगाने के लिए या फिर ग्रो बैग में यूज़ कर लेते हैं, बट इट इज़ सिंगल टाइम ही यूज़ करते हैं कमर्शियली। आप अगर होम ग्रोअर हो तो आप उसे रीयूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ अ कोकोनट हस्क, जिससे ये इस तरह से चीज़ें वो बनाते हैं डिकम्पोज करके और फिर उसे कॉम्प्रेस करके एक ब्लॉक बनाते हैं। इस ब्लॉक को आपको लेके आना होता है और उसको फिर बफरिंग करके या फिर उसको डायरेक्टली आप अगर लो एसी वाला लेके आ रहे हो तो उसे डायरेक्टली आप पानी में डाल के इस तरह से भूरा बना देते हैं। ये कॉइन्स है, कोको कॉइन्स, ये इजीली अभी अवेलेबल हो जाते हैं। इसमें ये देखिए आप, एक बैग लगा हुआ है कोकोनट बैग। तो ये बैग से क्या होता है कि वो जो मैंने आपको बताया कि वो स्मॉल पार्टिकल्स एनएफटी चैनल में आ जाते हैं और वो वाटर को क्लॉग कर लेते हैं, तो ये चीज़ उससे कम, मतलब वो रिड्यूस कर देती है और इजी है। आप डायरेक्टली उसको पानी में डालिए, वो एक्सपांड हो जाता है और सीडलिंग डाल दीजिए। देन नेक्स्ट इज राइस हल्स। राइस हल्स क्या है, वो जो चावल के धान होता है ना, जो चावल पहले जब फार्म में रहते हैं तो चावल के ऊपर का जो कवर होता है, दैट कवर ऑल्सो यू कैन यूज इन कोको हाइड्रोपोनिक्स। मोर इकोनॉमिकल देन परलाइट एंड वर्मिकुलाइट। ज़्यादातर राइस हल्क हम लोग मशरूम कल्टीवेशन में यूज़ करते हैं, बट या डेफिनेटली यू कैन यूज इट इन हाइड्रोपोनिक एज वेल। इट इज़ ऑल्सो लाइक, बट एक प्रॉब्लम आती है राइस हल्क में कि आपको इसको बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से डी इन्फेक्ट करना होता है इनिशियली। लाइक जब आपने कहीं सुना होगा कि मशरूम कल्टीवेशन के कुछ वीडियोस अगर देखे होंगे तो उन लोग भी जो कोकोनट लाइक राइस हल्क यूज़ करते हैं, उसमें उन लोग पहले उसे लाइमस्टोन जो होता है, चूना चूना जो होता है, तो उसके पानी में उन लोग उसको डाल के रखते हैं करीबन 24 घंटे
या 1.5 दिन तक के, उसके बाद में उसमें से रिमूव करते हैं। तो बैक्टीरिया और फंगस का इफेक्ट बहुत जल्दी होता है राइस हल्क में। तो ये चीज़ आप एक बार ध्यान रखिएगा कि अगर आप राइस हल्क यूज़ कर रहे हैं और यार हाइड्रोपोनिक सिस्टम, तो उसे बैक्टीरिया और फंगल डी इन्फेक्ट सबसे पहले करिएगा। देन और 5.5 और 6.5 का पीएच आप लोग को मेंटेन करना ही है, वो तो थंब रूल ही है। डेफिनेटली इट इज़ कंपार्टिबल एज वेल एज it is so lightweight to use in your growing media as well as growing tray. डाउनसाइड यहाँ पे हम अगर डिस्कस करते हैं राइस हल्स का, तो सबसे मेन डाउनसाइड है कि इट हैज़ मैग्नीज टॉक्सिसिटी। आप चाहे उसे कितना बफरिंग कर ले, कितना पानी से धो ले, लेकिन मैग्नीज की टॉक्सिसिटी रहेंगी उसमें राइस हल्क में। तो परचेस करते समय जब आप राइस हल्क परचेस कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें उनसे पूछ लीजिएगा कि मैग्नीज का डी इन्फेक्ट किया है क्या उन्होंने, या फिर उसे स्टरलाइज किया है क्या, ये सारी चीज़ें। और डायरेक्टली आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको पहले बैक्टीरिया इन्फेक्ट करना पड़ेगा, डी इन्फेक्ट, और मैग्नीज के लिए फिर उसको भी बफरिंग करनी पड़ेगी। मैग्नीज उसमें से निकालना पड़ेगा एक्सट्रैक्ट करके थ्रू केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये ग्रो बैग सिस्टम है जिसमें राइस हल्क यूज़ किया है, एंड यू कैन ग्रो हो रहा है, plant is grow. Then another growing media which you can use is sand. Sand, it is cheap alternative to use as it is easily available. जाओ बीचेस पे, वहां से उठा के लेके आ जाओ, पीएच न्यूट्रल। बट एक डाउनसाइड है कि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है जब आप उसको अपने हाइड्रोपोनिक सिस्टम में यूज़ करते हो, और जैसे उसने वाटर रिटेन कर लिया, वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, तो जो उसका वेट अभी है वो 3 to 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। तो आप अगर अपना सिस्टम जो आपने बनाया है, हाइड्रोपोनिक सिस्टम आपने जो बनाया है, अगर वो सपोर्ट उतना इफेक्टिव सपोर्ट नहीं कर पाता है, आपके मतलब सपोर्टिव नहीं है, बहुत ही फ्रेजाइल हाइड्रोपोनिक सिस्टम बनाया है, स्मॉल हाइड्रोपोनिक सिस्टम बनाया, तो उसके लिए हम सैंड को एज एन अल्टरनेटिव हम यूज़ नहीं कर सकते उसमें, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बल्कि हो जाएगा और आपका सिस्टम ही बहुत ज़्यादा हैवी बना देगा। देन यूज़ कर लाइक सैंड को यूज़ करने के पहले हमें उसे थरली वॉश करना पड़ता है, थ्रू विच ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि ब्लेंच वाटर मिक्सचर से आप उसको रिंस कर सकते हैं, या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड सोल्यूशन मिलता है मार्केट में, उसको आप वाटर में मिक्स करिए और उसको फिर वॉश कर लीजिए थरली, सो दैट इट कुड बी स्टरलाइज, बिकॉज वो नेचुरली स्टरलाइज नहीं होता है, आपको उसको स्टरलाइज करना पड़ता है। तो स्टरलाइज करने के लिए देर इज़ अ मेथड कि आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसमें आप उसे डाल दीजिए और उसको मतलब कुछ देर के लिए रखिए, तो वो स्टरलाइज हो जाएगा, उसमें से बैक्टीरियल और फंगल जो भी है वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। अब डेफिनेटली जैसा कोकोनट हस्क के बारे में मैंने डिस्कस किया था कि स्मॉल पार्टिकल जो है, स्मॉल ग्रेन साइज ऑफ सैंड जो है, आप उसे मत यूज़ करिए। डेफिनेटली वो आपके पंप को हजार्ड करेगा या फिर पंप को चोक कर देगा। तो सेम एज जो कोको कॉर के लिए मैंने यूज़ किया था, सेम यहाँ पे मैंने वही चीज़ बताया। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि जो सैंड ईजिली विच इज़ अवेलेबल इज़ यूज टू कल्टिवेट द क्रॉप। Then another thing which we can use is polystyrene packing nut. नाम बड़ा ही डिफ़िकल्ट है, बट चीज़ बहुत ही ईजी है, सिंपल सी। जो आप नॉर्मली बॉल यूज़ करते हैं बलून्स में, या फिर जो अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट के पास से जो थर्मोकॉल के शीट्स आते हैं, दैट इज़ पॉलीस्टीरीन पैकिंग नट्स। शिपिंग के लिए जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं, इट इज़ डेफिनेटली ऑब्वियसली ईजिली अवेलेबल है, लाइट वेट है, और वाटर भी ईजिली ड्रेन हो जाता है। Then the next is the very serious downside of using polystyrene is it absorb स्टेरीन एंड बेंजीन। ये दो केमिकल जो है, स्टेरीन एंड बेंजीन,
ये वो प्लांट प्लांट से एब्जॉर्ब करते हैं। तो देर इज अ बिट risk of cancer, developing cancer. Like there are two component, carcinogen and neurotoxins. These are two component which is majorly responsible. One is for uh, developing cancer, and another one, the neurotoxic, is it is risk for wildlife, because whenever they digest, whenever they go and eat that, जो एनिमल है, एनिमल अगर खा लेता है वो सारी चीज़ों को, एक्वेटिक एनिमल्स हो गया या फिर नॉर्मल एनिमल हो गया, तो उनके डाइजेशन सिस्टम को क्लॉग कर लेता है, और डेफिनेटली इट इज़ वेरी मच रिस्क फॉर वाइल्ड लाइफ। तो ये चीज़ ध्यान रखें कि वो जो पैकिंग है, वो पैकिंग मटेरियल को आप कहीं पे भी ना फेंक दें। तो ये इस तरह से चीज़ होती है। इस तरह से एक ब्लॉक बना के आप डेफिनेटली, जैसे वो ओएसिस क्यूब था, ओएसिस क्यूब में एक होल था और एक ब्लॉक बना हुआ था, आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। बट वही है कि ये यहाँ पे भी एक डीमेरिट और ऐड हो सकता है कि ये भी लाइट वेट है। तो लाइट वेट है तो डेफिनेटली वाटर में फ्लोट कर रहेगा ऊपर में, अगर आप ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं। तो वाटर में अगर फ्लोट करता है तो फिर इसके लिए सेकंड अल्टरनेटिव आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो सेकंड अल्टरनेटिव, यू कैन यूज़ कोकोनट हस्क, कोकोपीट आप यूज़ कर सकते हैं इसके साथ में, ताकि उसे एयरेशन भी इजीली मिल जाए और वाटर और मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी भी इजी हो। Then second is grow rock. Grow rock is similar to uh, the stone which is used. तो ये भी एक स्टोन ही है काइंड ऑफ, बट जो स्टोन का फॉर्मेशन होता है दैट इज क्रश्ड अप वाटर। जो ग्लास बॉटल होते हैं उसको क्रश किया जाता है, उसके बाद में हीटिंग करके कैल्शियम कार्बोनेट को मिक्स किया जाता है, तब जाके वो पर्टिकुलर स्टोन बनता है, ग्रो रॉक जैसे हम बोलते हैं। तो दिस रॉक इज़ ऑल्सो, कई बार देखा होगा आपने कि जहाँ पे भी वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी के पास में आपको ऐसे ही रॉक मिलेंगे, और वो ही रॉक के बीच में से आप देखोगे या उसके ऊपर ही आप देखोगे तो प्लांट ग्रो हो रहे हैं। तो दैट कैन ऑल्सो बी यूज एज अ ग्रोइंग मीडिया। इट इज़ ऑल्सो पीएच न्यूट्रल, स्टरलाइज एंड फैंटास्टिक एरिएशन प्रोवाइड करता है, बिकॉज उसका स्ट्रक्चर ही इस तरह से होता है, ऐसे लाइक सिमिलैरिटी नहीं होती है, हर एक रॉक में सिमिलैरिटी नहीं दिखती है। तो जब आप उसे रखोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट अ गैप इनसाइड इट, वॉइड्स मिलेंगे। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक वॉइड मिल गया, यहाँ पे ये वॉइड मिल गया, यहाँ एक वॉइड मिल गया। तो इट हैज़ अ ग्रेट वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, लाइक वाटर रिटेंशन नहीं, एरेशन कैपेसिटी अच्छी है। देन और एक प्रॉब्लम इसमें रहता है कि जो रूट होते हैं वो रूट चिपकने का डर रहता है। जो भी आपके प्लांट होते रॉक होते हैं, वो रॉक के ऊपर वो इजीली स्टिक हो जाते हैं। देन अगर स्टिक हो गए और उसको वाटर नहीं मिला रेगुलरली, अगर उसे वाटर सप्लाई नहीं मिलता है तो वो सूखने लगते हैं, और फिर जो वाइट रूट होते हैं वो वाइट रूट धीरे धीरे ब्राउन होके सूख जाते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है कि वो स्टिकी होने के कारण वो रूट्स चिपकते हैं। देन आप इसे इजीली वॉश कर सकते हैं, और इट कैन बी रीयूज, केप्ट ऑन रीयूजिंग। तो नो इशू, एज इट इज स्टरलाइज तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। देन इजीली अवेलेबल है, रीयूजेबल है, एक्सट्रीमली अफोर्डेबल है। देन डाउनसाइड इज बहुत ज़्यादा हैवी है। तो डेफिनेटली आप अगर एनएफटी चैनल बनाए जिसमें आपने उसे किसी स्मॉल वॉल माउंटेड एनएफटी चैनल बनाया हो, तो उसमें आप डेफिनेटली रॉक यूज़ नहीं कर सकते, ग्रेवल और रॉक यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज ग्रेवल और रॉक, एक ग्रेवल और रॉक आपका आधा किलो 1 किलो तक हो जाता है, आधा किलो तक हो ही जाता है अप्रॉक्सीमेटली। तो अगर आप कंप्लीट नेट पॉट में अगर एक भर देते हो ग्रेवल्स को या फिर रॉक को, तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, वाटर रिटेन मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। एज यू नो, ग्लास मटेरियल से बना हुआ है, हीटिंग किया हुआ है और ग्लास मटेरियल से बना हुआ है, सुपर फिनिश दिखता है, तो डेफिनेट है कि मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करेगा। देन ओनली सुटेबल फॉर, सिर्फ कोई कुछ सर्टेन हाइड्रोपोनिक सिस्टम है उसी में वो यूज़ हो सकते हैं, बट ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं करते हैं। मतलब दिस इज़ द काइंड।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाटर भरा हुआ है और ये रॉक यूज़ करके प्लांट को ग्रो कर रहे हैं. Then next growing material which can be used is floweral foam. फ्लावरल फोम ये है जो बुके होता है, बुके के नीचे में आप देखते होंगे ग्रीन कलर का ऐसे ब्लॉक यूज़ करते हैं. सो दैट इज़ नोन एज फ्लावरल फोम. इट इज़ डेफिनेटली सिमिलर टू ओएसिस क्यूब, but the size of floweral foam is bigger than oasis cube. कंस्ट्रक्शन वाइज आपको देखिएगा तो सेम है, बट अगर उसका फॉर्मेशन के हिसाब से आप देखोगे तो वो इट इज़ नॉट सेम एज ओएसिस क्यूब. इट लुक्स सिमिलर टू ओएसिस क्यूब कंस्ट्रक्शन वाइज. देन जो फोम होता है, फोम का भी सोकिंग कैपेसिटी बहुत अच्छा है. इट कैन स्टोर वाटर, tendency to store water for a longer time, as well as air pass means water retention, easily it can be aerated. So air easily pass हो सकती है आपके floweral foam से, so definitely it is a better option. It is preferable for better and longer result because हम floweral foam बुके में भी इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज वहाँ पे तो हम न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं कर सकते, बट जो प्लांट के स्टेम होते हैं, प्लांट के स्टेम को मॉइस्चर मिलना चाहिए सो दैट इट कैन लास्ट फॉर 12 आवर्स और 12 आवर्स और 1 डे. तो उसी के लिए हम फ्लावरल फोम को पानी से मॉइस्चराइज कर देते हैं और इट हैज़ अ वेरी गुड वाटर रिटेंशन कैपेसिटी. इसी कारण आपके जो फ्लावर हम यूज़ करते हैं बुके में वो फ्रेश रहते हैं कुछ समय तक के. डेफिनेटली इट इज़ एनवायरमेंटल फ्रेंडली, और जैसे मैंने आपको बताया कि इट एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर प्रोलॉन्ग लाइफ ऑफ फ्लावर्स. बेनिफिट है, इट इज़ इजीली अवेलेबल, बट डाउनसाइड भी है. कैन क्रम्बल लीफ पार्टिकल्स इन योर सिस्टम. कई बार आपने देखा होगा, आप उसे होल्ड करने ही जाते हैं, लाइक पकड़ने ही जाते हैं तो ही उसमें से पार्टिकल्स निकलना शुरू हो जाते हैं. लाइक कुछ जो भी है वो आपके हाथ में लग जाएगा या फिर नीचे पार्टिकल्स गिरना शुरू हो जाएंगे. वेरी हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी. तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप सीडलिंग करने जा रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा वाटर हाई रिटेंशन कैपेसिटी भी हमें सूटेबल नहीं है. इसलिए तो लोगों ने ओएसिस क्यूब और रॉकवुल बनाया, और कमर्शियली रॉकवुल और ओएसिस क्यूब इसलिए यूज़ होता है कि वो जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है, वाटर रिटेंशन कैपेबिलिटी है, उसे ऑप्टिमम लेवल पे रखते हैं. नॉट एज फ्लावरल फोम कि बहुत ही ज़्यादा वाटर रिटेंशन कैपेसिटी कर देता है, जिसके कारण जो सीड्स होती है या फिर प्लांट होता है वो ऑलमोस्ट मरने की कगार पे आ जाते हैं. दिस इज़ द काइंड ऑफ फ्लावरल फोम. और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेटअप किस तरह से, वही सेम ओएसिस क्यूब वाला एक कंप्लीट छोटा सा क्यूब ले लिया, होल कर दिया और उसमें आप प्रोड्यूस करने शुरू कर दिया. देन नेक्स्ट वन विच कैन बी यूज्ड इज पाइन शेविंग. पाइन शेविंग इज, पाइन इज अ वुड वाला जो पाइन होता है ना, पाइन वुड, दैट इज. तो उसके जो मतलब भूरे निकलते हैं उसको भी हम एज अ ग्रोइंग मीडिया यूज़ कर सकते हैं. इट हैज़ ऑल्सो गुड सोकिंग एबिलिटी, वेरी इनएक्सपेंसिव और इजीली अवेलेबल. देन जस्ट मेकिंग श्योर दैट क्वालिटी ऑफ द पाइन शुड बी गुड इनफ. मतलब हम जो भी पाइन वुड का मटेरियल लेके आ रहे हैं, लाइक उसे रंदा मरा के लेके आ रहे हैं, उसकी क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए. लाइक बहुत सारों की सोकिंग एबिलिटी अच्छी नहीं होती है, तो वो एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा. इसके बाद में देन जैसे मैंने अभी बताया कि इट हैज़ अ गुड सोकिंग एबिलिटी. तो डेफिनेटली गुड सोकिंग एबिलिटी है तो गुड एब्जॉर्बेंट होगा लिक्विड मॉलिक्यूल्स के लिए. लाइक जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हम यूज़ कर रहे हैं वो लिक्विड मॉलिक्यूल ईजिली सोक कर लेगा वो, और इट विल ट्रांसफ़र टू योर प्लांट रूट इफेक्टिवली. एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दैट वुड? कंप्लीटली ऑर्गेनिक है, मेंटेन स्ट्रक्चर है, बायोडिग्रेडेबल है, and can attend pest and organism. एंड नाइट्रोजन इम्बैलेंस का थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है पाइन वुड में, बट इट कैन बी मैनेजेबल, राइट. आप अगर सोल्यूशन सही से बनाते हो और उसको आप वॉश कर लेते हो तो इट इज़ ईजिली, लाइक यू कैन यूज़ इट. दिस इज़ द
photograph of that pine shaving, which you can use in your hydroponic system. So this was all about the hydroponic growing media, which most popularly used in hydroponic system. So everyone got it about hydroponic growing media. What all are the different hydroponic growing media used? Am I audible? Hello? Message. Okay. So should we switch to the next session? ओके. सो जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, वो व्हाट्सएप ग्रुप में ही लोगों ने डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट इज ऑर्गेनिक, लाइक व्हाट इज ऑर्गेनिक, हाउ टू नो दैट ये ऑर्गेनिक प्रोड्यूस है. तो उसी के लिए मैंने एक शॉर्ट सेशन इसमें बना दिया है कि हम पता कैसे करें कि व्हाट इज ऑर्गेनिक, हाउ लाइक क्या क्या चीज़ें होती है उसमें. तो ऑर्गेनिक का डेफिनेशन अगर हम पता करने जाए तो वो हमारा केमिस्ट्री वाला डेफिनेशन से बिल्कुल भी सेम नहीं है. केमिस्ट्री वाला डेफिनेशन इज़ वे फार डिफरेंट, एंड जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है या फिर ऑर्गेनिक क्रॉप है या ऑर्गेनिक प्रोड्यूस जिसे हम बोलते हैं, उसका डेफिनेशन पूरा कम्प्लीटली डिफरेंट है. यहाँ पे अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ अ सिस्टम ऑफ फार्म डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट टू क्रिएट एन इकोसिस्टम which can achieve sustainable productivity without the use of artificial external input such as chemical fertilizer and pesticide. You can use external input definitely. आपके प्लांट को ग्रोथ करना है, आपके प्लांट को कुछ लाइक उसके डिफरेंट ग्रोइंग स्टेज पे अगर उसे सॉइललेस मीडिया से अगर वो सारी फर्टिलाइज़र या फिर सेकेंडरी और प्राइमरी फर्टिलाइज़र नहीं मिल रहा है तो आपको डेफिनेटली उसे प्रोवाइड कराना है फर्टिलाइज़र, बट इट शुड नॉट बी आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड. दैट फर्टिलाइज़र इज़ नॉट आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड. इट शुड बी ऑर्गेनिक एंड इट शुड बी नेचुरली अवेलेबल. नेचुरल फर्टिलाइज़र अगर आप यूज़ करते हैं देन इट इज़ someone has text what in hydroponic organic. Sir, we'll be discussing it in question and answer session. You can ask your question in 4 to 5 slide later. So without use of artificial external inputs such as chemical fertilizer and pesticides. This is what organic definition is. Then ये है हमारा ये इंडिया ऑर्गेनिक फूड मार्केट साइज बाय रीजन बाय वैल्यू. तो नाउ दिस इज 2021. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ग्राफ है यहाँ पे ये शो कर रहा है कि इंडिया का ऑर्गेनिक फूड मार्केट का ग्रोथ किस तरह से है. 2013 से आप कंटिन्यू देख सकते हैं 2023 तक के. डेफिनेटली यहाँ पे और 3-4 साल में डेफिनेट ग्रोथ होगा और इट विल बी एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. तो there is a good business opportunity for approaching into organic cultivation of crop as well as organic selling of crop. Then how to recognize it is organic? There are जो भी प्रोड्यूस होते हैं, लाइक वट एवर प्रोड्यूस इज बीन सोल्ड इन मार्केट, लोकल शॉप में, आपके मॉल में या फिर ऑनलाइन, जितने भी ऑर्गेनिक प्रोड्यूस बिकते हैं उसमें एक अगर उन्होंने ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेशन लिया है और वो बोल रहे हैं कि ये ऑर्गेनिक प्रोड्यूस है, तो डेफिनेटली दे शुड हैव एन इंडिया ऑर्गेनिक लोगो देयर. और उसी इंडिया ऑर्गेनिक लोगो के नीचे में एक बॉटम में सर्टिफिकेशन नंबर होता है जो उन्हें मिलता है. दे हैव टू अप्लाई फॉर द सर्टिफिकेशन. प्रोड्यूस या फिर जो भी इनपुट आप यूज़ कर रहे हैं उसे टेस्ट किया जाता है. टेस्ट करने के बाद में उन्हें ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन देता है. वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन देते हैं इंडिया में, वो हम डिस्कस करेंगे. तो पर्पस ऑफ गेटिंग और लाइक सर्टिफिकेशन क्या है? ये आपको फ्रॉड से बचाता है. लाइक अश्योर द क्वालिटी एज वेल एज इट प्रिवेंट द फ्रॉड.
for any organic producer, सर्टिफिकेट आइडेंटिफायर सप्लायर ऑफ क्रॉप। तो ये इन लोगों को एक अश्योरेंस देता है, लाइक इफ आई एम अ शॉप ओनर, मेरे पास में शॉप है जो मैं ऑर्गेनिक प्रोड्यूस बेचता हूँ, बट मैं ऑर्गेनिक प्रोड्यूस किसी और फार्मर से लेता हूँ, तो मुझे तो क्वालिटी का अश्योरेंस होना चाहिए ना कि जो फार्मर से मैं क्रॉप ले रहा हूँ वो ऑर्गेनिक है, तभी तो जाके मैं अपने स्टोर से जो कंज्यूमर है उन्हें बेच पाऊंगा। तो यहाँ पे हमें क्वालिटी का एश्योरेंस प्रोवाइड कराता है। ये B2B की बात हो गई। अब कंज्यूमर के लिए सर्टिफाइड, ये कई दफ़ा आपने देखा होगा कि जो पैकेट्स होते हैं या फिर जो भी बेकरी के पैकेट्स है या बहुत सारी चीज़ें, उसमें लिखा होता है लो फैट, 100% होल व्हीट। जो ब्रेड के पैकेट होते हैं यूजुअली उसमें लिखा होता है 100% होल व्हीट। नो आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव, जूस के बॉटल होते हैं या फिर जो भी हेल्थ रिलेटेड चीज़ें होते हैं उसमें लिखा होता है नो आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव। तो ये कस्टमर को एक सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कराता है कि यस, हम जो चीज़ कंज्यूम करने वाले हैं या फिर हम जो चीज़ घर के लिए लेके जा रहे हैं और फर्दर सब्जी बनाने के लिए या फिर जो भी कुछ करने के लिए, तो वो एक अश्योरेंस प्रोवाइड करता है कस्टमर को कि यस, इट इज़ सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोड्यूस, यू कैन कंज्यूम इट, इट इज़ हेल्थ बेनिफिट्स, इसमें ये हेल्थ बेनिफिट्स हैं, और डेफिनेटली आप अश्योरेंस प्रोवाइड कराते हैं। दैट्स वाई सर्टिफिकेशन ऑफ योर क्रॉप इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, लाइक इफ ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है तो ऑर्गेनाइजेशन बना है तो वो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है कि यहाँ अगर मैं कुछ चीज़ कर रहा हूँ तो उसका सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर लिया, तो इट इज़ एन मैकेनिज्म थ्रू विच इट इज़ वर्किंग। देन सर्टिफिकेशन जो होता है, सर्टिफिकेशन इज इन टू मेजर कैटेगरी। एक होता है फार्म इनपुट सर्टिफिकेशन, आप अपने प्रोड्यूस कल्टीवेट करने के लिए जो भी आप सब्जी उगा रहे हैं उसमें आप क्या क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं, इसका फार्म इनपुट का सर्टिफिकेशन, कि हम जो फार्म में एज एन इनपुट यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ ऑर्गेनिक, कम्प्लीटली ऑर्गेनिक। जो इसमें सीड हो गए, फर्टिलाइज़र हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, इवन वाटर जो आप उसमें यूज़ कर रहे हैं, जो पानी आप यूज़ कर रहे हैं, दैट शुड बी नॉट द वाटर शुड नॉट बी कंटेमिनेटेड। उसका भी सर्टिफिकेशन में आपको बताना पड़ता है कि यस, जो पानी हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ नॉट कंटेमिनेटेड, बैक्टीरिया फ्री है और जितने भी फंगस है उससे फ्री है और केमिकल से भी फ्री है। और फार्म प्रोड्यूस, जो आप प्रोड्यूस करेंगे, लाइक आपने कल्टीवेशन कर लिया, उसके बाद में जो भी सब्जियां उगाई या फिर आपने हल्दी उगाई या जो भी चीज़ उगाई, उस चीज़ का सर्टिफिकेशन मिलता है। तो देयर आर टू सर्टिफिकेशन, फार्म इनपुट और फार्म प्रोड्यूस। ठीक है, अब ये सर्टिफिकेशन हम ले कहाँ से? तो सर्टिफिकेशन एज पर इंडियन स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशन, देयर आर टू ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड यू सर्टिफिकेशन। एक है नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, आपडा, APEDA, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है। तो ये आपडा जो है, ये आपडा दोनों प्रोवाइड करता है आपको, फार्म इनपुट सर्टिफिकेशन भी और फार्म आउटपुट प्रोड्यूस का सर्टिफिकेशन भी। इसके 29 सर्टिफिकेट एजेंसीज है ऑल ओवर इंडिया में, 29 सर्टिफिकेट एजेंसीज हैं। यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए हैं, UPSOCA, तो यूपी का है। तो ऐसे काफ़ी सारे स्टेट में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, आप इसको गूगल कर सकते हैं। मैं सारे सर्टिफिकेशन एजेंसीज को नहीं मेंशन कर सकता था यहाँ पे, तो इसलिए अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप गूगल कर लीजिए 29 सर्टिफिकेट एजेंसीज, आपडा के 29 सर्टिफिकेट एजेंसीज, तो आपको मिल जाएंगे। इसके बाद में सेकंड है पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम, जिसमें जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में, और ये है नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो NONCOF। तो इसके आपको दिख जाएंगे गाजियाबाद, नागपुर, पणजी, इम्फाल, बैंगलोर, भुवनेश्वर और जबलपुर। तो ये सारे हैं। तो ये दो ऑर्गेनाइजेशन है। आई गेस ये जो नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग है ये सिर्फ प्रोड्यूस पे देता है, ऑर्गेनिक प्रोड्यूस का सर्टिफिकेशन देता है। आपका जो है वो आपका दोनों देता है, ऑर्गेनिक आपका इनपुट के लिए भी और प्रोड्यूस के लिए भी। ठीक है, तो दिस वाज द सेशन। Then okay, so if you have any question you can float it here. Okay,
सर मुझे एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ, बोलिए ना। सर वो ग्रो बैग में मैंने इसको डेवलप किया है हम्म। विथ कोकोपीट ओनली। हम्म। पर उसमें क्या है, सवेरे और शाम को जब वाटरिंग करते हैं तो उसमें ओवर वाटरिंग हो जाती है, और यदि ओवर वाटरिंग होती है रुकते हैं तो उसमें वो ड्राइनेस आ जाता है। ओके, तो सर तो आपने ड्रेन ड्रेन होल दिया हुआ है नीचे? दिया है, उसके बावजूद भी सर ओवर वाटरिंग, बहुत गीलापन रहता है उसमें भी, इतने हीट में भी। ओके, तो आप एक काम करिए, उसमें ओवर वाटरिंग हो रहा है तो आप उसमें परलाइट यूज़ कर लीजिए। जी। इसमें कैसे होता है कि आपने पूरा कोकोपीट यूज़ किया है, तो उसको जी। एग्जैक्ट एरेशन जो है वो एरेशन नहीं मिल रहा है, वो एक के ऊपर एक स्टैक हो गया है। ओके। तो आप वाटर मतलब आप ये यूज़ कर लीजिए, परलाइट उसमें मिक्स कर लीजिए, 30% परलाइट यूज़ कर लीजिए और 70% आपका कोकोपीट यूज़ करिए। तो उसको एरेशन जी। भी मिल जाएगा और ये वाटर रिटेंशन कैपेसिटी भी आपकी हाई रह जाएगी। ओके सर, परलाइट के अलावा और कोई इस्तेमाल कर सकते हैं सर? परलाइट के अलावा हाँ, परलाइट कॉस्टली पड़ता है सर वो। परलाइट तो कॉस्टली पड़ता है, तो आप एक काम करिए, फिर बेस्ट होगा आप मतलब उसमें जो पानी डालते हैं वो किस तरह से डालते हैं, वो झारा से डालते हैं या फिर कैसे? नहीं, ड्रिप लगाया है सर। ड्रिप सिस्टम लगा है तो ड्रॉप बाय ड्रॉप है या फिर स्प्रिंकलर है? नहीं, ड्रॉप बाय ड्रॉप है। ड्रॉप बाय ड्रॉप है तो फिर तो ज़्यादा नहीं आना चाहिए। सवेरे मैं 15 मिनट लगाता हूँ, शाम को 15 मिनट लगाता हूँ। अच्छा, कम आपके भी किया है पर आपके प्लांट में कोई इफेक्ट हो रहा है क्या? कुछ दो एक जो कुकुम्बर के प्लांट है वो ये हो गए। उसमें वो जो कुकुम्बर है वो छोटी छोटी जो है पूरी येलो हो चुकी है, और लीफ में भी वो ये नहीं है। ओके ओके, आप एक काम करिए, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए और मेरे को फ़ोटो शेयर करिए। फिर मैं आपको बता ओके। दूंगा कि एग्जैक्टली वो न्यूट्रिएंट का प्रॉब्लम है या फिर वाटर का प्रॉब्लम है। मेरे हिसाब से वो वाटर का राइट। प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर प्लांट के लीव्स येलो हो रहे हैं मतलब नाइट्रोजन या फिर आयरन डेफिशिएंसी, ये दो में से एक चीज़ हो सकती है। तो नहीं, लीफ नहीं सर, वो कुकुम्बर जो है, जो फ्रूट्स आए थे छोटे छोटे, हाँ हाँ, वो येलो हो गए थे। और येलो होके सूख के गिर गए थे। हाँ, सूख के भी गिर रहे हैं बहुत सारे। हाँ, तो फिर उसमें पॉलिनेशन का एक प्रॉब्लम है, मतलब आपने पॉलिनेशन नहीं किया होगा। नहीं, पॉलिनेशन तो हुआ है, काफी सारे उसमें फ्लावरिंग भी आई है, काफी सारे फ्रूट्स भी आए, कुकुम्बर भी बहुत है। ओके। बट कुछ कुकुम्बर अच्छे बड़े भी हुए हैं। हाँ हाँ। बट 50 से 60% जो कुकुम्बर है बहुत छोटे से 1 इंच साइज के होने के बाद में येलो हुए हैं, और हाँ। बाद में वो बर्न होके जैसे गिर जाते हैं वैसे गिर रहे हैं। ओके शॉकिंग ओके, हो रहा है। ठीक है सर, आप मेरे को फ़ोटो भेजिए तो कैसे जी। इजीली समझ में आ जाएगा। शायद अगर इस तरह से अगर वो फ्रूटिंग स्टेज में है, फ्रूटिंग स्टेज में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो डेफिनेटली पोटेशियम की भी कमी हो सकती है। अगर लीफ में कुछ इफेक्ट नहीं है, फ्रूट में प्रॉब्लम आ रहा है तो पोटेशियम की ज़रूरत है। ओके। तो अभी मैं सर पोटेशियम और उसको फॉस्फोरस। हाँ। 13-0-45 दिया है उसको। 13-0-45। ओके। ठीक है ना, तो आप रिजल्ट चेक करिए फिर उसको क्या दे रहा हाँ, है, अभी क्या दो बता। दो 2-3 दिन हुए चेक करता हूँ सर। हाँ बिल्कुल, एक मिनट, मेरे मैं हिसाब फोटो से। सेंड करता हूँ। हाँ हाँ, चले। नेक्स्ट इज, हम लोग ने यहाँ पे फीडबैक फॉर्म शेयर किया हुआ है, तो आप लोग प्लीज़ फीडबैक अपना फिल कर लीजिएगा उसके। नेक्स्ट इज, आप लोग यूट्यूब चैनल पे नागपुर हाइड्रोपोनिक सर्च कर लीजिए या फेसबुक पे नागपुर हाइड्रोपोनिक सर्च कर लीजिए और फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज हमारे ऐसे वेबिनार्स आते रहते हैं। तो अभी नेक्स्ट मंथ में हम लोग शुरू करने वाले हैं ओपन ओपन डिस्कशन, जो भी जिसके भी जो भी क्वेश्चंस है दे कैन आस्क दे, और अगर मेरे नॉलेज में है वो चीज़ तो डेफिनेटली आई विल आंसर। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपा का, वेरी नाइसली डिटेल एंड पुट अप, बट नीड टू नो, आर यू गोइंग टू प्रोवाइड एनी प्रैक्टिकल वेबिनार वेयर वी कैन गेट हाउ टू। या प्रैक्टिकल वेबिनार हम लोग ऑनलाइन करने का सोच रहे हैं, बट उसे थोड़ा टाइम है। इफ़ यू आर फ्रॉम नागपुर देन डेफिनेटली वी कैन गो फॉर इट। हेलो, what media is best used for planting lettuce? For lettuce definitely you can use uh, oasis cube. First option would be oasis cube. अगर oasis cube नहीं खरीद सकते, मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहा है, तो सेकेंडली आप लोग यूज़ करिए कोकोपीट।
बेस्ट ऑप्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड कोकोपीट यूज करिए, बेस्ट इज बेस्ट, यू कैन यूज कोकोपीट। ओके, या हाँ, यू कैन like you, first option would be you can use Oasis Cube or Rockwool. Second option, if it is expensive for you, like purchasing Oasis Cube and Rockwool is expensive, then second best option you can use is Cocopit. Use Cocopit for lettuce, it is best option. Is hydroponics organic? Definitely not sir, जिसने भी आपको बताया है, मुर्शिद सईद सर पूछ रहे हैं कि इज हाइड्रोपोनिक ऑर्गेनिक, तो ये डेफिनेटली ऑर्गेनिक नहीं है। जिसने भी आपको बताया होगा वो गलत चीज़ बताया। यहाँ पे आप क्या, जो भी न्यूट्रिएंट आप यूज़ करते हैं, जो अभी अवेलेबल है न्यूट्रिएंट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एनपी की ये सारी चीज़ें, वो ऑर्गेनिक नहीं है। हाँ, बायो फर्टिलाइज़र अवेलेबल है मार्केट में, बट वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं जो नॉर्मल आपके फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करते हैं। तो हम अगर हाइड्रोपोनिक सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं तो डेफिनेटली वी हैव एन एम कि हम 2 टाइम 3 टाइम्स मोर कल्टीवेशन निकालें एज कम्पेयर टू सॉइल फार्मिंग। तो अगर आप दोनों में से एक चीज़ मिलेगी, आपको ऑर्गेनिक मिलेगा या फिर मोर कल्टीवेशन मिलेगा। बट इतना गारंटी दे सकते हैं कि जो हाइड्रोपोनिक से ग्रो हुए क्रॉप है, जो हाइड्रोपोनिक से ग्रो हुए क्रॉप है और आपके सॉइल से जो क्रॉप ग्रो हुए है, उसमें काफ़ी डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है मैं थोड़ा सा इलेबोरेट कर देता हूँ। फार्मर क्या करते हैं अपने फार्म में, उन्हें जब लगता है कि हमें यूरिया छिड़काव करना है तो वो पूरा बोरा उठा के लाते हैं यूरिया का, और यूरिया हाथ में मुट्ठी में पकड़ पकड़ के फेंक डालते हैं। जितना फेंकना है उनकी मर्जी पे है, और फेंकना है तो और फेंक लेते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर सोचते हैं कि थोड़ा सा और डालना है तो और डाल लेते हैं। बट हाइड्रोपोनिक में वैसा नहीं है। आप जो न्यूट्रिएंट सोल्यूशन बनाते हैं, आपको मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट तीनों टाइम में आपको चेक करते रहना है कि उसके लीफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या। जैसे अभी सर बता रहे थे कि सॉइललेस कल्चर में मैं कर रहा हूँ, फ्रूट में प्रॉब्लम आ रहा है, फ्रूट येलो हो रहा है, लीव्स येलो हो रही है, या फिर रूट जो है वो रूट ब्राउन हो जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देखते हो, उसके हिसाब से आप ट्रीट करते हो थ्रू फर्टिलाइज़र। तो यहाँ पे आप जजमेंटल फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हो, एजुकेटेड मतलब कैलकुलेटेड फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हो। तो डेफिनेटली पूरा ऑर्गेनिक वाला तो नहीं है, बट जो मटेरियल सॉइल से आपको जो चीज़ें अभी मिल रही है उससे डेफिनेटली बहुत अच्छी तरह, बहुत अच्छा प्रोड्यूस निकलता है आपका हाइड्रोपोनिक्स के थ्रू। थैंक यू फॉर द वंडरफुल सेशन, इट इज़ इन्फॉर्मेटिव एंड वेरी यूजफुल। देन हरेंद्र, when are you taking a webinar on nutrient mix and balancing of pH? Waiting for it. या न्यूट्रिएंट मिक्स वाला हम मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ में लेंगे। मुझे इस बार टाइम नहीं मिल पाया था, बट वो फ्री वेबिनार नहीं होगा, वो पेड वेबिनार होगा, बिकॉज उसमें बहुत सारी चीज़ें होगी। एक एक छोटी छोटी फर्टिलाइज़र के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वहाँ पे। तो वो पेड वेबिनार होगा। ग्रुप में ज्वाइन रहिए, फेसबुक में और यूट्यूब वगैरह में आपको अपडेट मिलते रहेगा वहाँ पे, जैसे ही कुछ अपडेट मतलब हम वहाँ पे डिस्कस करते हैं। देन व्हाट G09, hello, what media is best used for planting lettuce? Yes, I have replied for your comment. You can use Rockwool and Oasis Cube. This is your first option if it is easily available and it is affordable for you. If not, you can use Cocopeat, cocoa coir, coconut husk, which I have discussed. You can use Cocopeat as a second option. No issue. Both are very good and it is giving best results. हाउ टू बफर कोकोपीट, मैं इस पे वीडियो बनाने वाला हूँ पुष्पक। अगर तुम्हें ऐसे नॉर्मली बता दूंगा तो समझ में नहीं आएगा, उसमें थोड़ा सा डिटेल में बताना है, तो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तुम मुझे पर्सनल मैसेज कर दो, ग्रुप में हो शायद तुम पुष्पक, है ना? तो तुम पर्सनल मैसेज कर दो, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि कितना ग्राम कैसे मिलाना है। बट उस पर मैं डिटेल वीडियो बना के अभी जस्ट यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा बाय द एंड ऑफ दिस मंथ और फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ। Is then Murshid, is hydroponic? If yes, kindly explain. I have explained that. Bala sir, useful and good information. Thank you. Irshad, thank you. We learned. Can you please suggest some company providing best quality coco peat and rockwool for commercial? Don't search for any best company.
अपने लोकल स्टोर में जाओ, लोकल शॉप में जाओ, एग्रीकल्चर मार्केट में, उनके पास में अवेलेबल रहता है। कहीं देखो आप चीज़ें मंगा रहे हो 5 रुपए की, जो आपका जो ये है कोको, जो मैंने ब्लॉक बताया था आपको, कोकोनट वाला जो ब्लॉक होता है, वो ब्लॉक कितने का मिलता है? 5 kg वाला आपका अप्रोक्सीमेटली 200-300 का मिल जाएगा। 5 kg कन्वर्ट हो जाता है 15-20 kg में, 10 से 15 kg तक ऐसा बड़ा, ये एक आधा बोरा भर जाता है आपका। तो छोटी सी चीज़ के लिए आप इतने दूर से कोई सप्लायर ढूंढोगे, बेटर है अपने लोकल स्टोर में जाओ, लोकल स्टोर के पास से डायरेक्टली उसे कोकोपीट को लेके आ जाओ और इजीली मिल जाता है वो चीज़ें। डोंट गो फॉर एनी बिग कंपनी, ऐसे कोई बिग कंपनी है नहीं जो अश्योरेंस दे के आपको कोकोपीट और रॉकवुल देती है, सब सेम ही है। रॉकवुल इंपोर्ट होके ही आता है, कोकोपीट जो है सारे जितने भी साउथ साइड के हैं, साउथ से ही इंपोर्ट होके आपके वेस्ट जोन, ईस्ट जोन में आता है। तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मेजर इशू नहीं है। हाँ, बस इतना है कि आप कोकोपीट लेके आते हैं, कोकोपीट को थोड़ा सा उसका भूरा निकाल लीजिए, थोड़ा 1-2 बार वॉश कर लीजिए, ईसी मीटर और पीएच मीटर, ईसी मीटर होगा आपके पास में, उसका ईसी चेक कर लीजिए। जो आपका पीपीएम है वो पीपीएम अप्रॉक्सीमेटली 100-150 के नीचे आना चाहिए, या 200 तक। अगर आपका पानी का ही पीपीएम जो टीडीएस है वो अगर 140 तक है तो 200 के नीचे आना चाहिए। अगर 200 के नीचे है तो वो रेडी टू यूज़ कोकोपीट है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर क्या होता है, जो लोकल एग्रीकल्चर शॉप में मिलते हैं वो उतना हाई क्वालिटी का नहीं होता है, तो ये एक चीज़ चेक कर लीजिए तो इजी हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। व्हाट्सएप लिंक आप लोग को मेल भी आया होगा व्हाट्सएप लिंक का या फिर टेलीग्राम चैनल का, तो मेल चेक किए होंगे तो आपको मिल गया होगा, क्योंकि व्हाट्सएप मोस्ट प्रोबेबली जल्दी भर जाएगा। तो फिर टेलीग्राम का ग्रुप बना हुआ है, वो टेलीग्राम में आप ज्वाइन हो सकते हैं। हाउ टू बफर कोकोपीट, अगेन द सेम क्वेश्चन। देखो कुछ नहीं करना है, आपका जो कंप्लीट, यार उसमें बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं, आपके पास में है क्या एग्जैक्टली वो पता रहना चाहिए। देखिए क्या करना है, सबसे पहले कि आपने अगर ब्लॉक लेके आए, कंप्लीट ब्लॉक लाया है, तो वो ब्लॉक को एक रात पानी में डाल दिए। जो कंप्लीट ब्लॉक है, एक बड़ा सा बकेट ले लिया, उसको पानी में डाल दिया और उसको पानी सोक करने दिया पूरा रात भर पानी सोक करके वो एक्सपांड होना शुरू हो जाएगा। जैसे एक्सपांड हो जाता है, 1-2 पानी धो लो, सबसे पहले वॉश कर लो। उसके बाद में 3 पार्ट, एक ग्लास लो, 1 पार्ट कोकोपीट लो, एक कोई भी मेजरिंग कप ले लो, वो मेजरिंग कप में 1 पार्ट ऑफ कोकोपीट लो और 3 पार्ट पानी लो, मतलब 3:1, 3 पार्ट वाटर और 1 पार्ट पानी। उसमें मिक्स कर लो। मिक्स करने के बाद में ईसी चेक करो, टीडीएस मीटर से चेक करो कि कितना पीपीएम आ रहा है या ईसी आ रहा है। अगर 200 से कम है, कन्वर्जन आप कर लेना उसको ईसी में, 0.5 से कम होना चाहिए, 0.5 या 0.6 से। 0.6 से अगर कम आ रहा है या फिर 200 तक आ रहा है तो अप्रॉक्सीमेटली आप उसको यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली, बफरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सेकंड साइकिल आप लेना चाह रहे हो, फर्स्ट साइकिल आपने क्रॉप का ले लिया और आपको सेकंड साइकिल लेना है, सेकंड साइकिल के लिए आपको बफरिंग करने की ज़रूरत है। तो बफरिंग करने के लिए यूजुअली एक मतलब आपका जो कंप्लीट 1 लीटर है, 1 लीटर पानी में 15 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट डालना। कैल्शियम नाइट्रेट फर्टिलाइज़र मिलता है मार्केट में, छोटे छोटे बॉल सामान होते हैं। 1 लीटर पानी में 15 ग्राम, 10 लीटर पानी है तो 150 ग्राम आप मिला लीजिए उसमें, और पूरा जो भी आपका कोकोपीट है वो कोकोपीट को उसमें डाल दीजिए और 1 रात तक रहने दीजिए। उसमें अलग अलग कंपोजिशन है, कई लोग 50 ग्राम मिला लेते हैं और 2-4-3 दिन तक रख लेते हैं। कई लोग 150 ग्राम डाल देते हैं और उसको 1 दिन में ही बफरिंग कर लेते हैं। बेस्ट ऑप्शन क्या है वो मैं वीडियो में आपको बता दूंगा, जैसे वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे बेस्ट ऑप्शन मैं आपको बता दूंगा। तो ये आप एक यूज़ कर सकते हैं, और जैसे वो बफर हो जाएगा फिर से आप उसका ईसी चेक करिए और उसको यूज़ कर लीजिए। यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाएगा, मतलब आप क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं, मैं चीज़ें क्वेश्चन को अगर आगे डिले कर रहा हूँ तो डेफिनेटली वो चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली होती है, मतलब प्रेजेंटेशन में अच्छे से बताए कि हाँ आपको कैसे कोकोपीट डालना है या फिर उसमें कैसे बफरिंग करना है। तो इसलिए मैं उसको थोड़ा सा डिले कर रहा हूँ, कुछ दिन वेट कर लीजिए, मोस्ट प्रोबेबली वीडियो आ जाएगा
नहीं आया तो फिर व्हाट्सएप ग्रुप में हो, मैं डिटेल में उसको टेक्स्ट में लिख के आपको बता दूंगा कि आपको कितना ग्राम किस में मिलाना है, कैसे करना है और कितने देर बाद उसको बकेट में रख के रिंस करना है और कितना सुखाना है, ये सारी चीज़ें। For home gardening, if I am using NFT, how cocopeat can be used with the system? Easily you can use नेट कप में कोकोपीट भर लीजिए और जो आपका सीडलिंग रेडी है वो सीडलिंग को लगा के आप डायरेक्टली का आपके एनएफटी सिस्टम में डाल दीजिए। बालाजी सर, समझा आपको? नॉट एग्जैक्टली सर, एक्चुअली मैंने कोई स्पेसिफिक प्लांट से चूज नहीं किया है, बट जनरली होम गार्डनिंग में मैंने देखा है बहुत सारे लोग वही प्रेफर करते हैं, ये कॉम्बिनेशन मैंने लोगों से सुना है। हाँ हाँ, तो जनरली अगर मुझे एक सीड लगाना है तो मुझे ये सीड्स कोकोपीट के साथ यूज करने हैं या मुझे कोई और अलग स्टोरेज वगैरह लगेगा इसके लिए? एग्जैक्टली थोड़ा सा क्वेश्चन समझा नहीं, मुझे एक बार फिर से समझाएंगे क्या क्या पूछना चाह रहे हैं एग्जैक्टली? हेलो। वो नेट पॉट में कोकोपीट यूज करके उसमें सीड्स डालते हैं या कैसे करते हैं? देखिए, वो दोनों ऑप्शन है आपके पास में। डायरेक्टली आप सीड नेट कप में सीडलिंग कर सकते हो, या फिर एक छोटा सा सीडलिंग ट्रे आता है, वो सीडलिंग ट्रे में आप पहले सीडलिंग बना लीजिए। क्योंकि कैसे होता है, डायरेक्टली नेट पॉट में आप डालते हो ना, तो जो रूट है, आप सीड तो ऊपर डाल दोगे, नेट कप में आपने पूरा भर दिया कोकोपीट, सीड को ऊपर डाल दिया, वो जो रूट है वो नीचे तक नहीं जा पाता है। अच्छा, तो ओके, बेस्ट ऑप्शन रहता है, जो आपको बेस्ट इन द बेस्ट सोल्यूशन अगर मैं बताऊँ तो बेटर रहेगा कि आप एक छोटा सा ट्रे आता है, छोटे छोटे ट्रे होते हैं, सीडलिंग ट्रे बोलते हैं। आप एग्रीकल्चर शॉप में जाइएगा, उनको पूछिएगा सीडलिंग ट्रे दीजिए, तो एक छोटा सा सीडलिंग ट्रे दे देगा वो, 20 प्लांटर का या फिर 70 प्लांटर का। वो सीडलिंग ट्रे लेके आइए, उसमें सीडलिंग बनाइए, फिर बाद में आप नेट पॉट में ट्रांसफर करिए। ओके, वो बेस्ट ऑप्शन होता है और सही, मतलब जो करेक्ट अप्रोच है वो वही है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। What are the certificate needed for starting hydroponic as a commercial level? No such certification is required. आप अपना कमर्शियल हाइड्रोपोनिक फार्म शुरू कर सकते हैं इफ़ यू आर नॉट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एज वेल। साइंस बैकग्राउंड है, कॉमर्स बैकग्राउंड है, तो भी आप अपना कमर्शियल फार्म यूज़ कर सकते हैं। आपको नॉलेज है तो आप अपना प्रोड्यूस देखिए, आप अपने प्लांट को देखिए। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो किसी कंसल्टेंसी को हायर कर लीजिए, वो आपका सारा टेक केयर कर लेगा, आपके हाइड्रोपोनिक फार्म को भी देख लेगा और न्यूट्रिएंट का रिक्वायरमेंट क्या है और क्या प्रोड्यूस निकालना है वो सब चीज़ कर लेगा। देयर इज़ नो सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड। इंडिया में बिजनेस करने के लिए कोई सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, सिर्फ जब आप लोन लेने जाते हो, गवर्नमेंट से सैंक्शन लोन चाहिए, तब सर्टिफिकेशन की थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ती है, बट वो भी मैनेजेबल है। आप इजीली कुछ भी सर्टिफिकेशन, मतलब एमएसएमई का सर्टिफिकेशन ले सकते हो। फॉर सेलिंग प्रोड्यूस, अगर आप प्रोड्यूस सेल कर रहे हैं, वही मैंने बताया, अगर आपको ऑर्गेनिक टैग लगा के प्रोड्यूस सेल करना है तो आपको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है, जो मैंने डिस्कस कर लिया। आपने अगर मिस कर दिया है सेशन तो फिर पता नहीं, बट जो ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेशन चाहिए तो वो सेशन मैंने डिस्कस कर लिया है कैसे। अगर ऑर्गेनिक नहीं करके बेचना है, वर्बली आप बेच सकते हो। देखो, दो ऑप्शन है। आपने हाइड्रोपोनिक क्रॉप कल्टीवेट हार्वेस्ट किया है, दो ऑप्शन है। माउथ पब्लिसिटी करो कि हमने ऑर्गेनिकली कल्टीवेट किया हुआ है, वो पूछेंगे कैसे ऑर्गेनिकली किया है, तो बता देना कि हमने पेस्टिसाइड्स यूज़ नहीं किए, नॉर्मल जो बायो फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स है वो यूज़ करके ऑर्गेनिक प्रोड्यूस तैयार किया है। वर्बली बोल के आप बेच सकते हो, लिखित में आप नहीं बेच सकते। जो आपका ये है, पॉलीथीन है या फिर बैग है, उसमें आप ऑर्गेनिक करके आप नहीं बेच पाओगे जब तक कि आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं है। वर्बली डेफिनेटली आप बोल सकते हो ऑर्गेनिक है, और लोग अगर आप पे ट्रस्ट करते हैं, उन लोग ने खाने के बाद में टेस्ट उन्हें समझ में आया है, उन्हें लगा है कि हाँ टेस्ट सही है, तो आप बोल सकते हो, वो इशू नहीं है। उसके बाद G09, हेलो, व्हाट इज़ द बेस्ट यूज़ फॉर लेटूस
water based with nutrient. What is the best use of lettuce water based with nutrient or like coco peat and anything you say a while ago? Can you unmute yourself and just ask the question? Actually, I didn't get what you wanted to ask. Best use for yeah, definitely. Lettuce is 80% water. जो भी like हमारे यहाँ के like cabbage and all, it is leafy vegetable. They are 80% of water content. But uh, its nutritional value, you can Google it. There are many such research paper published which give the exact chart or range of nutritional value for different lettuce variety like Roman lettuce, green lettuce, Lola lettuce, and etc. They are given different nutritional value. So you can Google it and find out what are the nutritional value for different lettuce. Any further more question? Yeah, don't wait for any practical session to come. Just design your small 5 planter 10 planter setup. अगर आप नहीं बना सकते हमें बताइए, हम यहाँ से आपको बना के भेज देंगे जहाँ पे भी आपका लोकेशन है. तो 10 प्लांटर और 5 प्लांटर वाला स्मॉल सेटअप बनाइए और प्रैक्टिस करना शुरू करिए. आप खुद ही प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, कोई प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ईजी होगा. प्रैक्टिकल सेशन शुरू करिए, न्यूट्रिएंट पे वर्क करना शुरू करिए और वही बेस्ट अप्रोच है. How many of 16 people are here? How many have their own setup, practicing with own setup? Anyone have small setup? I will start this month. Okay, sure. Need to set up. Any queries regarding setup and all, you can ask in our WhatsApp group. We'll be ready to help you out. Ajay Kumar Patil need to set up. Okay. Good. So if anyone unmute themselves and just tell about how was the session and would he or she like to attend this kind of session in future, they can unmute and just reply. I have a setup. Mahesh Jadhav sir have a setup. How many planter? 14 planters. Okay. NFT. Okay, TFT. Okay. So we'll be waiting for your valuable feedback. So everyone is requested to just fill the feedback form, and if you want to join our WhatsApp group you can, or else Telegram channel you can join. Okay, we'll end up the session here. If any further question you can ask them.
Bala sir have a setup, but he is very much confused. Just join the WhatsApp group. Whatever is your confusion, will clear it up. Yeah, we'll try. There will be a series of free session, but the core areas like nutrient recipe design, set how to set up your own NFT system, how to build your own NFT system, that will be paid. Like wherein we need to discuss, like wherein we have to invest 4 to 5 hours of session, that will be paid one. Yeah, but it is not like you have to pay 1,000, 2,000 and all. It will be under the range. Okay guys, thank you. You can just comment if anyone have to give the feedback. Whatever is your feedback, you just can comment. It would be great if you guys Google Nagpur hydroponics and just rate us there and review us whatever you like about the session, and what are you expecting to come in another upcoming session. You can just write it there. Okay guys, thanks a lot. Be safe, stay at home. Thanks everyone, thanks. Yes sir, thank you Balaji sir. Balaji sir, you can just rate us or review us on Google, just searching Nagpur hydroponics on Google, and just giving the same feedback there. It would be great for us. Like more people will get exposed to what we are doing.